દેવ કી જય। આજે જે સ્તોત્ર બોલવા માટે જઈ રહ્યા છે એ સ્તોત્ર જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનું છે। જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા એટલે કે જે જીરાવાલા તીર્થની અંદર બિરાજમાન છે અને જેઓને જ્યારે અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા આદિ જ્યારે હોય છે, પરમાત્માની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને એ ઘડીએ પણ એમને યાદ કરવામાં આવે છે। જે પરમાત્માની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવે એ મૂર્તિની પાછળ, પ્રતિમાની પાછળ એ પાર્શ્વનાથ જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનો મંત્ર લખીને અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા આદિ કાર્યક્રમોની અંદર પણ જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ પરમાત્માને યાદ કરવામાં આવે છે। એવા 108 જે પાર્શ્વનાથ પરમાત્માઓ છે એ 108 પાર્શ્વનાથ પરમાત્માઓની અંદર જેમનું નામ યાદ કરવામાં આવે છે એવા મહાપ્રભાવશાળી એવા જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ પરમાત્માને આ સ્તોત્રના માધ્યમથી યાદ કરીશું। આ સ્તોત્રના માધ્યમથી એમની અદ્ભુત સ્તુતિ કરીશું। તો બધા જ પુણ્યશાળી આત્માઓ હાથ જોડો। જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર। ઓમ નમો દેવ દેવાય નિત્યં ભગવતે હતે શ્રીમતે પાર્શ્વનાથાય સર્વ કલ્યાણકારિણે રીમ રૂપાય ધર્મેન્દ્ર પદ્માવત્યર્ચિતાંગ્રયે શુદ્ધાતિશય કોટિભિः સહિતાય મહાત્મને અટ્ટે મટ્ટે પુરો દૃષ્ટે વિગટ્ટે વર્ણ પંક્તિવત દુષ્ટાન પ્રેત પિશાચાદીન પ્રણાશયતિ તે વિદા સ્તંભય સ્તંભય સ્વાહા શતકોટિ નમસ્કૃત અધિમથ કર્મણામ દુરાદા પતંતિમ વિડંબનામ નાભિદેશોદ્ભવન્નાલે બ્રહ્મરંગ્ર પ્રતિષ્ઠિતે ધ્યાતમસ્તદલે પદ્મે તત્વમેતત્ફલદમ તત્વમત્ર ચતુર્વર્ણૈ ચતુર્વર્ણ વિમિશ્રિતા પંચવર્ણ ક્રમ જ્ઞાતા સર્વ કાર્યકરી ભવેત ક્ષિપા ઓમ સ્વાહેતિ વર્ણૈ કૃત પંચાંગ રક્ષણ યો વિદ્યાયેદિદં તત્વં વસ્યાસ્તસ્યાખિલ ક્રિયા પુરુષં બાધતે બાઢં તાવત ક્લેશ પરંપરા યાવન્નમંતરાજોયં હૃદિ જાગર્તિ મૂર્તિમાન વ્યાધિ બંધવદવ્યાલા ન લાભ સંભવ ભય સ્વયં પ્રયાતિ શ્રી પાર્શ્વ નામ સ્મરણ માત્રત યથા નાદમયો યોગી તથા ચેતન્મયો ભવેત તથા ન દુષ્કરમ કિંચિત કથ્યતેનુભવાદિદમ ઇતિ શ્રી જીરિકાપલ્લી સ્વામી પાર્શ્વજીન સુત શ્રી મેરુ તુંગ સુરેશ
सर्व सिद्धि प्रदायक जीरापल्ली प्रभु पार्श्व पार्श्व यक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितम् सर्वमन्त्रमयं सर्व कार्यसिद्धिकरं पर ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरेन्द्र श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरा ध्यानस्थितं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवा सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवा सर्वसिद्धि लभे ध्रुवा. તારે જવું છે, તારે જવું છે. હા, કઈ કામ હતું મોકલો, તમે જો કાગળ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સબ્બસાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો સબ્બ પાવપણાસણો મંગલાનંચ સભ્યેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. શ્રીમતે વીરનાથાય સનાથાયાદ્ભુત શ્રિયા મહાનંદ સરોરાજ મરાલાયારતે નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રમુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓંકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિન કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ. ઓંકારાય નમો નમઃ. અનંત કરુણાના સાગર ચાર ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં अपने पावन पगला द्वारा કરીને જે ભૂમિને સ્પર્શના કરતા કરતા 100 કરોડ સાધુ 100 કરોડ સાધ્વી ની સાથે સિમંદર સ્વામી સ્વયં વિચરી રહ્યા છે એવા 20 વિહરમાન તીર્થંકર પરમાત્માઓને કોટી કોટી વંદના. જેઓએ પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકાશિત કરી લીધું છે, જેઓનો આત્મા અજર અમર નિરંજન નિરાકાર સ્વરૂપ બની ગયો છે, એવા સમસ્ત આચાર સિદ્ધ ભગવંતોને કોટી કોટી વંદના. જૈન શાસનની ધુરા સંભાળવા વાળા પરમાત્માના નિર્વાણ પછી 21,000 વર્ષ સુધી જેઓના ખભા ઉપર જૈન શાસનનું બહુ મોટું દાયિત્વ છે અને એના કારણે શાસન પ્રભાવના કરતા કરતા જૈન શાસનને છેલ્લા વ્યક્તિના હૃદયમાં પણ પરમાત્માનું શાસન માટે
પ્રભાવના કરતા કરતા જૈન શાસનને માટે એના માટે શ્રદ્ધા થાય એવા સમસ્ત કાર્ય કરવા વાળા એવા આચાર્ય ભગવંતોને કોટી કોટી વંદના. કર્મક્ષય માટે બહુ મોટો ઉપાય છે સમ્યક જ્ઞાન, અને સમ્યક જ્ઞાનનું દાન દેવા વાળા સમસ્ત ઉપાધ્યાયજી ભગવંતોને કોટી કોટી વંદના. જેમાં શ્રમ છે અને ક્ષમા છે એવા અમારા પંચમહાવ્રતધારી 27 ગુણોથી યુક્ત 24 કલાક પોતાના કાર્યમાં મસ્ત રહેવા વાળા, જીનાજ્ઞા મુજબ જીવન જીવવા વાળા સમસ્ત સાધુ ભગવંતોને કોટી કોટી વંદના. પ્રતિક્રમણ પછી થોડું ઘણું જે સ્વાધ્યાય માટે સમય કાઢીને પ્રતિક્રમણમાં જે ભાવોલ્લાસ વધ્યા છે એ ભાવોલ્લાસને ઉત્તેજિત કરવા માટે, વધારવા માટે આજનું આ છેલ્લું પ્રવચન સંવત્સરી મહાપર્વના દિવસે, અને આજે 8 દિવસમાં જે ભાવો ઉમટ્યા છે એ ઉમટ્યા ભાવોને 1 વર્ષ સુધી અકબંધ રાખવા માટે જે જ્ઞાન પીપાસુઓ આ સ્વાધ્યાયમાં મારી સાથે જે જોડાયેલા છે એવા જ્ઞાન પીપાસુઓના ચરણોમાં સત પ્રણામ કરી આજનું ક્ષમા વિશેનું પ્રવચન, એ ક્ષમા વિશેના પ્રવચનમાં મારા અને તમારા આત્માને કેમ આપણે મૂળ સ્વભાવમાં આવી શકીએ એના માટે કંઈક વિચારણા કરવા માટે જે આપણે એકત્રિત થયા છીએ. તો આજે ક્ષમા વિશે, ક્ષમાપના વિશે કોને કહેવાય, શા માટે ક્ષમાપના કરવાની છે, ભાદરવા સુદ ચોથ અને કાલિકાચાર્ય કરેલી, કાલિકાચાર્ય આચાર્ય ભગવંતે પહેલા જ્ઞાન 5 નરેન્દ્રભાઈ, જી જી હિન્દીમાં બોલશો આજે થોડા? હા હા, જરૂર 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 જરૂર, બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ, હાજી. आज अंतिम दिने आत्मा का जो मूल स्वभाव है क्षमा का, एक क्षमा का स्वभाव के अंदर जाने के लिए परमात्मा ने कई रास्ते बताए हैं. वो रास्ता का थोड़ा सा चिंतन करेंगे. क्षमा क्या चीज है और क्यों करनी चाहिए. वैसे विदेश की धरती के ऊपर रहने वाले व्यक्ति थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति के साथ उनको अनुचित लगे ऐसा व्यवहार हुआ हो तो मुंह में से एक शब्द निकलता है जिनको हम सॉरी कहते हैं. जिसको नहीं पसंद आने वाला एक व्यवहार से उनके दिल में अपने प्रति दुर्भाव पैदा हुआ हो, वो दुर्भाव निकालने के लिए पश्चिम देशों के अंदर अगर एक शब्द जो निकला हुआ है वो शब्द सॉरी है. सॉरी और मिच्छामी दुक्कड़म में कितना तफावत है उनका भी आज चिंतन करेंगे. वास्तव में ये क्षमापना दुनिया के साथ तो बाद में, लेकिन अपनी स्वयं आत्मा को मिच्छामी दुक्कड़म देना है. ये आत्मा में शरीर के माध्यम से तुम्हारे आत्मा के अंदर स्वस्वभाव में नहीं जाने दिया. तुम्हारा जो मूल गुण था सरलता, तुम्हारा मूल गुण था प्रामाणिकता, उस गुणों के अंदर नहीं जाने के कारण मैं तुमको अनादि अनंत काल से जो परिभ्रमण करवा रहा हूं, मैंने तुम्हारी आत्मा की बहुत लंबा संसार जो बढ़ाया, इसलिए मैं आपकी क्षमा याचना करता हूं. फिर से सबसे पहले मैं मेरी आत्मा की क्षमापना करना, ये निश्चय नय से क्षमापना है. क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूं,
અને वही दुनिया में जितने जीव है वो भी स्वयं आत्मा है। दुनिया में जब सोरी बोलते हैं तो सिर्फ ये मानव जगत के सामने सिर्फ सोरी बोलते हैं। मानव जगत के सामने उनके साथ हुआ अनुचित व्यवहार, उनके साथ किया गया नापसंद होने वाला हमारी चेष्टाएं, उस चेष्टा को निवारण करने के लिए हम सॉरी शब्द का यूज करते हैं। लेकिन जैन जगत की, जैन शास्त्रों की, हमारे तीर्थंकर परमात्माओं की, गंधर्व भगवंतों की जो दृष्टि है वो दृष्टि में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक हम क्षमा याचना करते हैं। जो कभी अपने मुंह से आपको धन्यवाद देने के लिए भी आपको अनुभूति नहीं होगी। पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, अपर्याप्त, पर्याप्ता, अपर्याप्ता, 7 लाख योनि, जो 7 लाख वगैरह जो बोलते हैं। अरे ये बात तो छोड़ो, जो देवगति को भी हम नहीं देख सकते, अनुभूति तो शायद नाकोड़ा जैसे तीर्थों में कई बार हो जाती है देवताओं का आगमन से। लेकिन नरक के जीव जिनको कहां पे देखने का अवसर मिलने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ श्रद्धा से ग्रहण करना है। उनके सामने हम मिच्छा मी दुक्कड़म, हम इस भाव के लिए पाप की क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं। भले संवत्सरी पर्व आया, संवत्सरी पर्व के लिए 1 साल के लिए पाप की आलोचना है, लेकिन हम संसार के परिभ्रमण के माध्यम से, संसार के परिभ्रमण के माध्यम से भूतकाल में हुए वर्तमान काल में जो हमारा व्यवहार हो रहा है उनके लिए हम मिच्छामि दुक्कड़म मांगते हैं। अरे ये बात तो आप ध्यान रखें। तो और एक बात, सामयिक करने से पहले, कोई भी शुभ क्रिया करने से पहले, चाहे चैत्यवंदन क्यों ना करना हो, क्यों सामयिक नहीं करना हो, कोई भी शुभ क्रिया करनी हो तो भाव जगत में जब प्रवेश करते हैं तो भाव जगत में प्रवेश करने से पहले आत्मा को निर्मल करने के लिए ऐसी प्रक्रिया में निकलते हैं जिनके कारण हमारे द्वारा मन से, वचन से, काया से की गई विराधनाएं उस आत्मा को पहुंची हुई तकलीफें, चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे अजागृत अवस्था में हो, उसके साथ हम क्षमा याचना करते हैं। ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मुझे पंचसूत्र याद आता है। पंचसूत्र में उन्होंने पूर्व भाव में की गई माताओं से भी क्षमा याचना मांगी है। क्या जैन शास्त्रों की, जैन धर्म की विशाल दृष्टि, दृष्टि को जब देखते हैं तक मस्तक झुक जाता है। जब हम अतिचार बोलते हैं, अतिचार के अंदर आज आपको सॉरी और मिच्छामि दुक्कड़म के बीच का जो फर्क है, शायद पहली बार आपको चिंतन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक पॉइंट जब मिलता है उसके बाद, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है रात्रि जागरण करने का, निद्राधीन होने से पहले यह प्रवचन का मूल सारांश, मूल भाव, मूल चिंतन सोते सोते आपकी ये चिंतन के माध्यम की सहायता से आप अवश्य ये जो अभी शब्द जो बोल रहा हूं उनके चिंतन करते करते आप निद्राधीन हो।
मां के पास आशीर्वाद क्षमा याचना मांगी, क्योंकि मुझे जन्म लिया तो मेरी मां को कष्ट हुआ। फिर से, मैंने जन्म ही नहीं लिया होता तो मेरी मां को कष्ट नहीं होता। परमात्मा की क्या दृष्टि है साहब। महावीर स्वामी परमात्मा तो इसी भव में जागृत अवस्था में अवधि ज्ञान के बले जब लगा कि मैं मेरी मां को कष्ट देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिस धरती में मैं शरीरी से अशरीरी बनने जाना है, मुझे अज्ञानी से के ज्ञानी की ओर जाना है, संसार के भव चक्र में से सिद्ध गति तरफ जाना है, कसाई में से अकसाई तरफ जाना है, और समस्त जीवों का मैं उपकार करने के लिए मुझे कदम उठाना है। तो जिन्होंने मुझे मेरे जीवन के ऊपर उपकार किया है, ऐसे उपकारी मां को मैं क्यों कष्ट दूं। ने उसी कारण से भगवान महावीर ने माता के गर्भ में हलन चलन बंद कर दिया। क्या उपकार दृष्टि। ये दो चीजें आपको अनुभूति फिर पे जाएगा। मैंने कहा कि पंचेंद्रिय जीवों के साथ और जिनके साथ आपका कोई व्यवहार, जिसके रोज लेना देना आना जाना, उनके साथ मिच्छामी दुक्कडम मांगना तो बहुत सरल है, शायद सरल है। जो तत्व, जो चीज वो सामने नहीं दिखाई देती, उनके पास क्षमा याचना मांगनी बहुत कठिन है। आज शायद प्रतिक्रमण में आप लोगों ने या तो गुजराती में अतिचार या तो हिंदी में अतिचार नहीं, इसके अलावा विदेश की धरती पे शायद इंग्लिश के अतिचार, जो कोई आपने अतिचार वो आपकी बातें हैं, लेकिन उस अतिचार के अंदर जीव के प्रति मिच्छामी दुक्कडम मांगने के अलावा कहां कहां हमने मिच्छामी दुक्कडम मांगे। पुस्तक के प्रति मिच्छामी दुक्कडम मांगा, सोचा जिस पेन से चेक के ऊपर सिग्नेचर करते हैं उस पदार्थ के प्रति भी मिच्छामी दुक्कडम मांगा। मैं शब्द खाली पॉइंटिंग दे रहा हूं, चिंतन करना आपका काम है। जो निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज, चलते चलते बड़ा कोई पत्थर आ जाए ने हम गिर जाए, हमारी असावधानी से हमारा ध्यान दूसरी की ओर होने के कारण ने उसी कारण से हम गिर जाए तो हम वो पत्थर के प्रति भी गुस्सा करते हैं। तो पत्थर के ऊपर जो किया गया गुस्सा, उनके लिए भी क्षमा याचना मांगनी है। ये मैं कोटेशन पंचसूत्र के माध्यम से जो अपने छात्रों ने प्रवचन से पूर्व 10-15 मिनट स्वाध्याय स्वरूप में आप सर्वे को जो सुनाते थे, उसमें प्रथम दिन, शायद मेरे ख्याल से प्रथम दिन हमने पंचसूत्र पढ़ा था। मंदिर में जब जाते हैं, देरासर में जाते हैं, उपासना में जाते हैं, या तो स्थान है जहां जहां पे के लिए जिनका हम लेते हैं, उस क्षेत्र में जाकर कलश के साथ भगवान का जो अभिषेक करने वाली जो साधन सामग्री, उस साधन सामग्री के साथ
कलश, बाल्टी, कुंडी, कटोरी, आसन, दर्पण, चामर, धूप, दीपक आदि जो कोई सामग्री हो, इसके साथ हमारा व्यवहार कोमलता पूर्वक, विनय पूर्वक अगर नहीं हुआ हो तो हम अतिचार के माध्यम से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय का बंध का कारण होने से अथवा उसका सदुपयोग करने से ज्ञान दर्शन आदि कर्मों का क्षयोपशम क्षय आदि करने के निमित्त भूत होने से अब ऐसा जो कोई व्यवहार किया हुआ हो तो हम मिच्छामि दुष्कृतम मतलब मेरा पाप दुष्कृत हो। उनका मतलब यह हुआ कि सिर्फ जिनके साथ हम रहते हैं बैठते हैं उनको ही सिर्फ मिच्छामि दुक्कड़म नहीं देना है। संवत्सरी पक्षी के चौमासी प्रतिक्रमण करने से पूर्व, प्रवेश करने से पूर्व 84 लाख योनि के जीव, कई जीव श्रद्धा गम्य ही है। हे प्रभु, आपने सूक्ष्म जीवों की परिकल्पना की, मेरे ज्ञान में, मेरे तुच्छ ज्ञान में, और जिस दुनिया मुझे विद्वान प्रकांड पंडित मुझे समझती है और मुझे मेरे ज्ञान के ऊपर गौरव कहूं या गर्व है, जैसे इंद्रभूति को था, और उसी कारण से मेरे पास जैन धर्म का छोटा सा जो ज्ञान है और उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की बात परमात्मा स्वयं अपने मुखारविंद से समोसरण में बैठकर चतुर्विंश संघ के सामने जो बात कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म जीवों की बात आती है, तब मैं सूक्ष्म जीवों के प्रति मैं श्रद्धा गम्य नहीं बन सकता। मैं सूक्ष्म जीवों को नहीं मानता हूं। हाँ, दुनिया में छोटे जीव तो हो सकते हैं, लेकिन 14 लोक में फांसी इतने गाढ़ 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 मिलाकर एक जीवों से संलग्न एक शरीर में अनंत जीव, ये जब तुम्हारी विश्वास की कल्पना, श्रद्धा की कल्पना भी नहीं कर सकता। है जीव, सूक्ष्म जीव, मैं मेरी श्रद्धा से तुमको नहीं स्वीकार किया। स्वयं परमात्मा मुखारविंद से आपको माना कि इस दुनिया में आप हो, ऐसा कहा, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मेरी परंपरा थी, मैं जैन कुल में जन्मा था, इसलिए मुझे ये प्रतिक्रमण करना था, मैंने कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग में कई बातें मैंने जो नहीं बैठी, तुम्हारा द्रव्य को, अस्तित्व को मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हे सूक्ष्म जीव, मैं तुम्हारा भी मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूं। जीव के प्रति मिच्छामि दुक्कड़म मांगने से साथ साथ जड़ तत्व जो अपने उपकारी हो या न हो, फिर से जो जड़ तत्व जो उपकारी हो या न हो, मैं अपने चरवले के प्रति, अपने मुपति के प्रति, अपने कटासन के प्रति, अपने ज्ञान के साधनों के प्रति सबके साथ क्षमा याचना करता हूं। जो नरक के जीव जिनके साथ मेरा अभी सिर्फ श्रद्धा के माध्यम से ही जानकारी है और मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पूर्व भवों के अंदर रहे हुए
आपके साथ जो व्यवहार हुआ होगा अनंत संसार में, मैंने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया हो उसकी भी क्षमा याचना करता हूं। क्षमा याचना मैंने कहा दो प्रकार की होती है, एक व्यवहार क्षमा, एक निश्चय क्षमा। इसलिए भद्रबाहु स्वामी ने 9 प्रवचन पर्युषण के जब पूरा करने के बाद एक शब्द कहा, यानी ये शब्द क्या कहा उनका थोड़ा सा कोटेशन लाया हुआ हूं कि प्रभु भगवान महावीर स्वामी जब कारुसव्य मुद्रा में थे तो परमात्मा कैसे थे। मेरे ख्याल से कल हमने परमात्मा 27 उपसर्गों का थोड़ा थोड़ा वर्णन हमने सुना कि परमात्मा को संगम देव ने एक साथ में 20 उपसर्ग मिला। फिर भी परमात्मा कैसे थे, तो एक शब्द लिखा है संते वसंते उपसंते। परमात्मा शांतता, प्रशांतता, उपशांतता। इस बार तो कोरोना का काल है, અને कोरोना के काल से शायद सामुदायिक पालना वहां पे भी नहीं होंगे, लेकिन अगर महीने के उपवास हो, सुंदर से सुंदर वहां पे व्यवस्था, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, संघ ने जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली थी, अने उन्होंने सुंदर व्यवस्था की हो, मास्क खमण का अपना पालना हो, संघ ने जबरदस्त भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक विनंती की हो, अने उसके साथ में अन्य लोगों के भी पालने हो। 30 दिन के उपवास अने पालने के अंदर सबकी सुंदर व्यवस्था, लेकिन कोई कारण से कोई इरादा नहीं है कि वो आपका मास्कमण करने वाले के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में आपका मास्कमण का, पालना का ध्यान वो लोग नहीं रख पाए। आप कल्पना करना क्या होगा। ये एक एक दृष्टांत, भगवान को विचार करिए आप। संगम देव उपसर्ग करने के बाद जहां जहां परमात्मा गोचरी के लिए निकले, जो परमात्मा की उचित योग्य व्यवहार आहार जो मिल रहा था, वो आहार को दूषित करने का काम संगम स्वयं कर रहा है। फिर भी प्रभु गोत्री नहीं मिलने से पुनः वापस अपने स्वस्थान में जो जा रहे हैं, उस समय भी प्रभु शांत थे, प्रशांत थे, उपशांत थे। एक दिन का काम नहीं है। पहली बार कदाच शायद कोई गलती हो जाए ने तो हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बार बार यही भूल दोहराते हैं, उसके सामने क्षमा देना और क्षमा लेना बहुत बड़ी, अपने लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। फिर से कि आपको पुनः दोहरा रहा हूं कि सबसे पहले दुनिया के जीवों के साथ क्षमा याचना मांगने से पूर्व मैं स्वयं अपनी आत्मा के साथ अपना शुद्ध स्वरूप प्रकाशित नहीं हो सका, उनके मूलभूत कारण मैं ही हूं। इसलिए हे आत्मा, मैं आपकी क्षमा याचना करता हूं।
कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, दृष्टांत के तौर पर किसी ने हमने किसी को 5 लाख रुपया दिया, उन्होंने जो तय समय किया था उस समय के बीच में वो लौटा नहीं पाए। बार बार उनको कहने के बावजूद वो दे नहीं पाए। हमारे मन में हम उनके प्रति क्या व्यवहार करेंगे? वास्तव में तो समझ में आता है कि उन व्यक्ति के पास से अगर पैसा निकालना है तो हम ऐसा माहौल बनाएंगे जिसके दबाव के कारण वो व्यक्ति अपने को पैसा दे देवे। अब देखिए, आत्मा का ये मूल स्वभाव नहीं है जो माया करने का। हमारा आत्मा का गुण सरलता है। तब हमने कहना पड़ा, हे आत्मन, मैंने जो माया की, आपके अंदर रही हुई सरलता को प्रकट करने नहीं दी, आपका मैंने अपराध किया। सेकंड नंबर, उस व्यक्ति के साथ अपराधी क्षमा मांगे के, लेकिन सबसे पहले हम अपने आत्मा के साथ क्षमा याचना करनी है। इसलिए यहां पे मैंने आज रात को थोड़ा सा जो याद आया, पॉइंट नोट किया है, उसमें लिखा हुआ है, कल्पसूत्र में जो लिखा, 8 दिवसीय जिसने आराधना की उसको सफल या निष्फल, उसको आराधक या विराधक, दोनों शब्द, आराधक या विराधक। यो तो आराधक का अर्थ ये होता है दान, शील, तप, भाव, जो प्रवृत्तियां जो परमात्मा ने बताई है, ये अगर 8 दिनों में की हो उसको हम आराधक कहेंगे। 2 टाइम प्रतिगमन, तपस्या, शैत्यवंदन, देववंदन, गुरुवंदन, अपने यथाशक्ति दान, ब्रह्मचर्य का पालन, सामान्य तौर पे उसको आराधक कहा जाएगा। लेकिन विराधक की बात जब आई तो विराधक किसको कहते हैं? तो एक शब्द निकाला, जो ये चीजें नहीं की और इनके प्रति सद्भाव नहीं किया, उनको विराधक हम कहेंगे। लेकिन परमात्मा ने और गहराई में जाने के बाद अपने को समझाने के लिए और एक बात कर दी, ये तो आराधक है लेकिन वो व्यवहार आराधक, क्योंकि ये थोड़ा विषय डीप में जाने जैसा है। और आज लग रहा था कि रोज प्रवचन दे रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, आज थोड़ा ऊंडाण में जाने की, गहराई में जाने की कोशिश हम करेंगे। अपने यहां पे धर्म 2 प्रकार के हैं, एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। आज मैंने जो बातें की है वो निश्चय तरफ ले जाने वाली मूल दृष्टि की बातें की है। मतलब कि किसको हम आराधक कहें, तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा, जे खमावे छे, क्षमा मांगे छे, वो आराधक है। जे सामने क्षमापना देता नहीं है वो विराधक है। तो ये बात करते करते परमात्मा ने, भद्रबाबू स्वामी भगवंत ने कल्पसूत्र के अंत में
जो बातें की है वो बात आज आपको गौर से चिंतन करने योग्य है। युवावस्था में कई बार प्रभु के पास आज क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु, तूने सारी 12 घोर साधना के बाद मेरे लिए इतना सरल रास्ता बता दिया कि अगर तू इस मार्ग पे चलेगा तो तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। फिर भी मैं चल नहीं पाया वो बात तो छोड़ो, मैंने विश्वास ही नहीं किया। कई बार ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से तीव्र ज्ञान शक्ति होने के कारण हम कई उलझनों में, पदार्थों को स्पष्ट बोध नहीं होने के कारण इसके प्रति संदेह और शंका उत्पन्न हो जाना, कि जिनके कारण तीर्थंकर के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाती है। गौतम, इंद्रभूति आदि गौतम कोई विद्वान में, ज्ञानी में कम नहीं थे, लेकिन एक शंका थी, अने वो अगर भाइयों में आपस 11 भाइयों में अगर वो प्रश्न पूछ लेते तो भी समाधान हो जाता। लेकिन सामने वाले व्यक्ति मेरे प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो भाव में कम करना नहीं चाहता, और उसी के कारण मैं उनके साथ बात शेयर नहीं कर पाता हूं। अपनी भूतकाल की संयोग के कारण कई बार हमने परमात्मा की कई बातों के प्रति जो विश्वास मतलब श्रद्धा नहीं की है, क्योंकि कई पदार्थ अतीन्द्रिय है, उसको अतीन्द्रिय पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से हम समझ नहीं सकते, अने उनके प्रति हुई अश्रद्धा को आज उनको भी मिच्छामि दुक्कडम 3 शब्द है। हम ज्यादातर अगर फोन पे या तो लिखेंगे तब एक ही शब्द दो शब्द यूज करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन इनमें 3 शब्द है। मिच्छा, एक बीच में एक अक्षर वाला मी, अने पीछे आया दुक्कडम। मिच्छा का अर्थ होता है मिथ्या, मिथ्या का अर्थ हुए फोगट, गुजराती भाषा में फोगट कहवाय। मी एटले मेरा, हूं। दुक्कडम मतलब दुष्कृतम, मेरा पाप। ये 3 शब्दों से बना हुआ एक शब्द जिनको हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। मेरा पाप, मैंने करेली भूल, मैंने किया हुआ अपराध, मैंने किया हुआ व्यवहार जो अनुचित है, अयोग्य है, अने इनके कारण जो कर्म बंध हुआ हो, जो पाप हुआ हो, उनकी मैं क्षमा याचना मांगता हूं। मतलब उसके पास नतमस्तक होकर अंदर हृदय के भावोल्लास के साथ क्षमा मांगता हूं। मतलब के 3 शब्द, मिथ्या, मिच्छा, मी, दुक्कडम। दूसरी बात, क्षमापना की एक अद्भुत बात है। राजा अने मंत्री, सेठ अने सेठाणी, मां अने बाप, सासू अने वहू, गुरु अने शिष्य,
मोटो भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, ये भी आपस में यहां व्यवहार की दशा से नहीं, लेकिन जिन्होंने व्यवहार गलत किया है वो व्यक्ति भी अपने छोटे के सामने दोनों हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। राजा ने अगर ये गलती की है तो मंत्री सन्मुख आंखों में आंसू लाकर और राजा मंत्री के पास क्षमा करके मैंने तुम्हारे साथ जो अनुचित व्यवहार किया है उसकी क्षमा याचना मांगता हूं। मतलब आप इसमें देखिए दुनिया की एक एक ऊंची नीची जो व्यवस्थाएं हैं, बॉस के सामने जो काम करने वाला बंदा, उनके अंडर में काम करने वाला बंदा, तो उस समय बॉस अपने आजीवन सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ मिच्छामि दुक्कडम मांगता है। बहू के सामने जिनकी हुकूमत पूरे घर में चलती है, जिनके घर में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन संवत्सरी के पर्व के दिन स्वयं जिनका पत्ता, जिनका पूरा वातावरण पूरे परिवार में बॉस की तरह चलता है, वही बॉस अपने छोटे से छोटे व्यक्ति, घर के अंदर रहेली छोटी बहू के सामने भी नतमस्तक होकर क्षमा याचना मांगते हैं। क्या अद्भुत विश्लेषण। खरेखर ये क्षमापना विषय जैसे जैसे चिंतन करते जाओ, एक एक उपसर्गों को ध्यान देखते जाइए। इसलिए तो कई जगह पर शास्त्रकार भगवंतों ने क्रोध को दबाने के लिए क्या क्या बात की है ने, उसमें से एक पंक्ति है, क्योंकि क्रोध जब आता है तो ग्रंथि और स्राव अनियंत्रित हो जाती है। क्रोध का परिभ्रमण बढ़ने से बीपी आदि रोग होते हैं। श्वास की कई बार गति बढ़ने से मृत्यु के शरण में जाना पड़ता है। कई बार व्यक्ति क्रोध के आगमन में वो स्वयं आत्महत्या, सुसाइड कर लेता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी, परमात्मा ने तो किया है, दिल और दिमाग से क्रोधाग्नि को दूर रखना चाहिए। ये तो बाह्य, जहां आत्म तत्व की बात ही नहीं, सिर्फ शरीर के ऊपर क्या असर होती है उनका वर्णन बताया। अरे यहां तक साध्य विधि में कहा गया है कि गुस्से में रहेली गृहिणी એટલે स्त्री भोजन करती वक्त या तो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को स्तनपान कराते से पूर्व अगर अधिक क्रोध में है, क्रोध में, अति क्रोध में रही हुई स्त्री अपने संतान को अगर स्तनपान कराती है, वो दूध नहीं रहता लेकिन विष बन जाता है, मतलब पॉइजन बन जाता है। मतलब जिस आवेग के अंदर, जिस आवेश के अंदर व्यक्ति जब रहता है तो शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं उनके तरफ इशारा किया गया है। ये क्रोध ऐसा है। अपने यहां पे चंड कौशिक का दृष्टांत बार बार आता है, वो तो कई दृष्टांत दिए हैं नहीं। इसलिए अगर मेरी विनंती है कि संवत्सरी महापर्व के आज अंतिम प्रवचन के माध्यम से मैं संपूर्ण समाज को, संपूर्ण जैन समाज को, जैन संघ के समस्त मेंबर को
एक विनंती करूंगा, आप अपने घर के अंदर सम्रादित्य कथा अवश्य पढ़े। फिर से सम्रादित्य कथा, जब भी शनिवार रविवार के दिन आपके पास, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम रहता है, लेकिन खुराक तो रोज चाहिए। मुझे वहां की परिस्थिति पता है, सुबह 6 बजे से रात को शाम को 6 बजे आना, उसके बाद खाना ने, जो एक वहां का रूटीन मुजब बंबई जैसी लास्ट फर्स्ट लाइफ है वहां की। लेकिन सोने से पूर्व रोज का एक पुष्ट, एक पन्ना, અને इतनी सरल भाषा में परम पूज्य आचार्य भगवान भद्रगुप्त सुरीश्वर जी महाराजा, जो भुवन भानुसुरी समुदाय में आचार्य थे, लेकिन वर्तमान काल में सदेह अभी उपस्थित नहीं है, स्वर्ग गमन हो चुका है, काल धर्म हो चुका है। लेकिन अद्भुत ग्रंथ का ऐसा न हो जाए कि हम ये क्षमापना समंचरी तक ही रहे। और यही अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन एक पन्ना, शायद मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगी, सोने से पूर्व सम्रादित्य कथा की एक पन्ना उसका चिंतन करे। और उसके बाद 12 महीने के बाद जब हम देखेंगे और पता चलेगा हमने एक कसायों के माध्यम से, क्रोध कसाय के माध्यम से हमने जिस पवित्रतम आत्मा थी उनको हमने बहुत परेशान किया। फिर से हम स्वयं आत्मा के बारे में क्षमा याचना, क्योंकि वही आत्मा दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक समान जो आत्मा है, वो आत्मा आत्मा की साधर्मिक है। इसलिए देवचंद्र विजय जी महाराजा अध्यात्म योगी, ऐसे देवचंद्र विजय जी महाराजा अपने स्तवन में गेहूं के दाने को देखकर, गेहूं के दाने को, उसको कहते हैं मेरे साधर्मिक भाई। फिर से हम सैन्य संघ के मेंबर बनते हैं, जिस मंदिर में जब हम रहते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, एक मेंबरशिप की जो प्रक्रिया होती है, उनके वो तो व्यवहार हुआ, और उसको हम आपसी में, आपस में साधर्मिक कहते हैं। लेकिन देवचंद्र विजय जी महाराज की क्या दृष्टि होगी, आप कल्पना करिए। और वो दृष्टि आज के दिन खुलनी चाहिए, जब गेहूं के दाने, और ये गेहूं के दाने को देखकर गेहूं के जीव को देवचंद्र जी विजय जी महाराजा अपने स्तवन के अंदर उनको साधर्मिक, मतलब सिद्ध के साधर्मिक जीव माना है। सिद्ध भगवत, क्योंकि देव गेहूं के दाने में रही हुई आत्मा ने अपने सिद्ध शिला में रही हुई आत्मा, दोनों एक स्वरूप है, जिनका एक आत्मा का विकास हो चुका है, एक आत्मा कर्म से जंजीरों में जकड़ी हुई है, लेकिन दोनों एक ही है। ऐसा अभी तो कई आज पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज की प्रवचन की शैली, अभी बैठे बैठे कई विचार चालू हो गए। आज मुझे लगा कि मैंने रोज कथाओं का माध्यम से बहुत बातें की है, जो करनी चाहिए, एक भगवान की आज्ञा थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा था मैं कोई तात्विक बातें आपके सामने शेयर करूं। रात्रि को कोई चिंतन नहीं था, लेकिन जैसे बैठा उस समय एक के बाद एक परमात्मा की कृपा से विचार आते गए, और वो विचार आपके समक्ष मैं कहता गया।
अब घड़ी के सामने जब देख रहा हूं तो 7 बजने की तैयारी है। आज मैंने सोचा था आधा घंटा कुछ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मेरी भी इसलिए थोड़ी समय की मर्यादा है क्योंकि आज छात्रों ने अठम, अट्ठाई, छठ અને आपको पता है यहाँ का वेदर ने, उसमें भी राजस्थान का वेदर ने, उस रात्रि के कल की रात्रि में बड़ा कम से कम 3-4 घंटे तक लाइट नहीं थी, क्योंकि बरसात अभी तक इतनी बरसात नहीं हुई है, गर्मी की प्रचंड मात्रा है। અને कल जो वातावरण जो हुआ था रात्रि के माध्यम से, उसके अंदर शायद छात्रों को नींद भी पूरी नहीं आई होगी। अभी उनका पालने की व्यवस्था थोड़ा सा मुझे देखना भी है। मैं थोड़ा सा, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा कर्तव्य है कि अभिभावक के रूप में मैं उनकी कुछ व्यवस्था कर सकूं। इसीलिए आज का प्रवचन यहीं समाप्त करता हूं। आज के प्रवचन में जो कुछ भी शब्द मैंने कहा, ये आपका गुणानुराग था कि आपको अच्छा लगा, ये आपकी पात्रता है। लेकिन अगर मैं कुछ बोल नहीं पाया, कोई अच्छी बात नहीं कर पाया, और आपको जिस तरह से, आपको जिस भाषा में समझ में आ जाए ऐसी बातें मैं नहीं कर पाया, तो ये स्वयं मेरी कमी है, और इसके लिए मैं आपके पास क्षमा याचना करता हूं। और यही आशा के साथ थोड़ा सा नाकोड़ा तीर्थ के बारे में, शायद राजस्थान के लोग तो नाकोड़ा तीर्थ को जानते ही हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में दो चार बातें करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। नाकोड़ा तीर्थ एक प्रकार का, यूं देखे तो मारवाड़ी राजस्थानी लोगों के लिए पालीताड़ा कहो या तो शंखेश्वर कहो। जिस तरह से गुजरात में गया हुआ व्यक्ति पालीताड़ा और शंखेश्वर गए बिना नहीं रह सकता, ये राजस्थान की धरती में आए हुए लोग राजस्थान की ये नाकोड़ा तीर्थ की स्पर्शना करेंगे। अभी तो ऐसा हुआ है, राजस्थानी लोग के साथ में गुजराती लोग भी इतने लोग ही आते हैं, और पूनम के दिन तो इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे 2-2 हजार कमरे, रूम होने के बावजूद कई बार लोगों को बाहर सोना पड़ता है। और शायद पूरे भारत के अंदर अगर जैनों का तिरुपति कहा जाए तो नाकोड़ा तीर्थ है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा से ज्यादा साधारण खाता की आवक होती है। पालीताड़ा के अंदर, शंखेश्वर के अंदर दादा के महिमा के कारण महादेव द्रव्य की उपज जबरदस्त होती है, लेकिन वो देव द्रव्य की संपत्ति सिर्फ परमात्मा के मंदिरों के पीछे, परमात्मा की मूर्ति के पीछे, मंदिरों का रख रखाव के पीछे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नाकोड़ा भैरव देव के जो भंडार के अंदर जो आवक आती है, वो 7 क्षेत्रों के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ऐसी साधारण खाता की आवक शायद भारत भर में जो मुझे ध्यान में है, तो ये कह सकता हूं कि ये सिर्फ नाकोड़ा तीर्थ है। यहाँ पे कई सालों से अपनी ये जो ज्ञानशाला जो मैं आप देखता हूं, रोज आप मांगलिक सुनते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे 150 से ज्यादा, कभी 160, 170, 180, कई बार 200, ये यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं। वो मध्यम परिवार वाले होते हैं, वो लो परिवार वाले होते हैं। अपनी माता पिता की क्षमता ऐसी नहीं होती कि जिसके कारण अच्छा एजुकेशन दे दे, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी यहाँ पे जाए, 5-6 साल में तैयार हो जाएगा, परमात्मा का शासन के अंदर सेवा करेगा और उनकी आजीविका के साथ कर्मबंध अल्प होगा, ये भावना के साथ उसके माता पिता यहाँ भेजते हैं। दूसरा लोग आते हैं जिनको संस्कार, पैसा तो अच्छा है लेकिन संस्कार पाना है इसलिए आते हैं।
तीसरे जो बच्चे आते हैं जिन्होंने दीक्षा लेनी है, संयम लेना है और अध्ययन करना है, वो 3 प्रकार कैटेगरी के विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं, अध्ययन करते हैं। हजारों छात्र नाकोड़ा तीर्थ की ज्ञानशाला से निकल चुके हैं। जैसे धीरूभाई पंडित जी को आप सुनते थे, देखते थे, जिन्होंने अद्भुत परमात्मा के शासन के प्रति काम किया है ना, अमेरिका की धरती पर तो अद्भुत काम किया है। इसे धीरूभाई जैसे, अब धीरूभाई की मुकाबला कहां था, लेकिन जो जिस पथ पे वो चले थे वही पथ का मार्ग का अनुसरण यहाँ के ज्ञानशाला के छात्र कर रहे हैं। ऐसे छात्र से आज मुझे स्वयं उपस्थित होने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण नहीं पहुंचे। फिर भी मैं आपके साथ जो दूर से बैठकर जो कुछ स्वाध्याय करने का मौका जो मिला, मैं सबसे पहले संघ का तो ऋणी हूं, पर जिनके माध्यम से मैं हर्षद भाई और जिगर भाई के साथ जुड़ा, उनके लिए भी मैं खूब खूब ऋणी हूं कि जिन्होंने मुझे संघ के साथ ये भक्ति करने का मौका मिला। उससे पहले मैं अचिंत भाई, जो जिनको मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन उसका लेटर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ। कई बार धर्म के बारे में जब चर्चा होती है, उनका पुराना लेटर, मुझे पूरा नाम याद तो नहीं है, लेकिन उनके बाद भी मैं ऋण कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि ये वो कागज, पुराना कागज के कारण जो आज का इस साल का मेरा जो आपके साथ आराधना करनी थी, उन सबके साथ मैं दिल से खूब जो मुझे भगवान के शासन का ऋण अदा करने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसके साथ मैं मेरा वक्तव्य यहीं पूरा करता हूं। 7:03 मतलब हो चुकी है, जो 1 घंटा करीबन हो चुका, और आपके साथ जो कोई आराधना करते वक्त मेरे शब्दों के द्वारा कई बार जो अपने को नापसंद हो, ऐसा शब्द मेरे मुख में से निकला हुआ हो, तो त्रिविदे फिर से मैं कह रहा हूं, भाई आपकी क्षमा नहीं मांग रहा हूं, मैं स्वयं अपने आत्मा की क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक जैसी है, और उसी कारण से मैं मेरा आत्मा को अपवित्र नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों के साथ मैं क्षमा याचना मांगता हूं। मुझे विश्वास है आप मुझे क्षमा करोगे। यही भावना के साथ आज का वक्तव्य पूरा करता हूं। ज्ञानशाला का खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर पाओगे, करीबन 1.5 करोड़ का खर्चा हर साल, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की हम टीप नहीं करते, किसी भी प्रकार की नहीं है, कोई योजना कोई रखी नहीं है। एक आपको ये आश्चर्य लगेगा कि पूरे विश्व में अगर कोई संस्था हो, बिना डोनेशन से चलने वाली कोई संस्था हो, तो भारत भर की एकमात्र संस्था नाकोड़ा तीर्थ की जैन ज्ञानशाला। आपको अनुमोदना करने का, जब आपको एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी विनंती है, आप मुझे आपकी भक्ति करने का सौभाग्य सद्भाग्य मुझे दीजिए। आप नाकोड़ा तीर्थ पधारिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके साथ भक्ति करने के लिए, मुझे बहुत आनंद आ जाएगा कि आपके साथ मैं भक्ति कर पाऊंगा। मैं थोड़ा बातें करते करते विचार आज पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, मेरा आगे वाला दायित्व होने के बावजूद मैं आपके साथ बोलते ही जा रहा हूं। हर्षद भाई ने कल भी कहा था कि मुझे थोड़ा सा आप बोल देना आधा घंटे के लिए, लेकिन मुझे 1 घंटा और 5 मिनट हो गई। फिर भी आपके साथ, क्योंकि आपको तो उपवास है आज, अभी पूरे जागरण परंपरा वर्ष में 1 बार, तो जब तक, क्योंकि पेट खाली पड़ा हुआ है, 24 उपवास है, हर व्यक्ति का पुण्य नहीं होता हर्षद भाई जैसा। एक तो वहां का वेदर भी बहुत बड़ा काम करता है तप के अंदर, कि आपके चेहरे की प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि आपने कोई तपस्या नहीं की। नहीं, हमारे छात्रों को देखो, क्योंकि प्रचंड गर्मी, अरे पसीना निकलता है। अभी मैं एसी वाले कमरे में बैठा हूं इसलिए नहीं लगता, बाकी पसीना निकल जाता, इतना बोलने के बाद पसीना निकल जाता। तो ये यहाँ का वेदर भी थोड़ा ऐसा है ना, राजस्थान की गर्मी, आहा, अरे कर्म खपाने हैं। तो मैं तो आपको विनंती करूंगा, जैसे परमात्मा अनार्य देश से नहीं, लेकिन राजस्थान की धरती पर आइए, जबरदस्त कर्म खंडित तो कपित हो जाएगा, मुझे भक्ति करने का सद्भाग्य मिलेगा। ऐसे आनंद प्रमोद के साथ आपके साथ जो समय निकाला है, मैं आपको तहे दिल से आप सभी का आभारी हूं। आपको प्रणाम, संघ को प्रणाम, અને यही भक्ति करने ना सद्भाग्य मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक चलता रहे, ऐसा मैं तत्वी संघ के पास आशीर्वाद की याचना करता हूं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बोलो हर्षदભાઈ। આપણે ડમરુભાઈ જરાક 2 શબ્દ કહેશે તો जी जी હા, તો જરાક પ્લીઝ બધા। जी जी।
ડમરુભાઈ. પૂજ્ય નરેન્દ્રભાઈ, પ્રણામ. આપણે એટલું બધું આપે સમજાવ્યું કે આપના વિશે શું કહેવું એ તકલીફ વાળું છે, પણ સૌ પ્રથમ આપને અને આપની સંસ્થાને અમારા સૌ વતી પ્રણામ. આપનો પરિચય સિન્સિનાટી ડેયટન સંઘને કરાવવાનો ફાળો અમારા સંઘના મિત્રો શ્રી વિરલભાઈ ચોકસી, ડોક્ટર અચિંત ચોકસી, જીગરભાઈ શાહ અને હર્ષદભાઈ શાહને જાય છે. તે બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન આપે ખૂબ સરળ ભાષામાં જૈન ધર્મના ગુણોનું અમને જ્ઞાન આપ્યું. તે બદલ હૃદયપૂર્વક અમારા સકલ સંઘ તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે જૈન ધર્મના 3 રત્નો કે જે શ્રદ્ધા એટલે કે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર છે, તેને ખૂબ સારી રીતે અર્થ અને દ્રષ્ટાંતો સાથે અમારી સમક્ષ પ્રદર્શિત કર્યા. તે બદલ સંઘ આપનું અનુમોદન કરે છે. ત્યાં ચાલી રહેલ સંસ્થાના કાર્યો વિશે જાણી આનંદ થયો. શિષ્યોને જોઈને તથા તેમની વાણી સાંભળીને પ્રસન્નતા અનુભવ્યા. તેઓનું પણ અમારા સંઘ વતી અનુમોદન કરું છું. આપ આવું અગત્યનું અને પવિત્ર કર્મ કરતા બદલ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં અમારા સંઘને આપનો ફરી લાભ મળશે. અંતમાં આજના પવિત્ર દિવસે આપે જેમ સમજાવ્યું કે સમાપના એટલે શું, પણ અમારાથી કાંઈ કચાશ રહી ગઈ હોય, કાંઈ મુશ્કેલીમાં મૂક્યા હોય, કાંઈ અવિનય થયો હોય તો આપને, આપના કુટુંબને, સંસ્થાના કાર્યકરોને અને દરેક વિદ્યાર્થીઓને અમારા સૌ વતી મિચ્છામિ દુક્કડમ. હવે આપણે અમારા પ્રેસિડેન્ટ અશ્વિનભાઈ જરાક 2 વાક્ય બોલશે અને પછી આપણે મિચ્છામી દુક્કડમનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરશું. અશ્વિનભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. નરેન્દ્રભાઈ, આપને અમારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. મારાથી દરરોજ આપનું પ્રવચન સાંભળી નથી શકાણું, પણ આજે મને મોકો મળ્યો સાંભળવાનો અને એવું લાગે છે કે મેં ઘણું મિસ કર્યું છે. અને તમારો જે આટલો સરસ સમજાવવાનો અને અમને જે દ્રષ્ટિકોણ આપવાનો જે રીત છે એ બહુ જ સરસ લાગી છે. અને ભવિષ્યમાં અમે ચોક્કસ આપની સાથે સંબંધ રાખી અને આપનો લાભ લઈશું. એ બદલ આના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખાસ કરી ને અમારા કમિટીના બધા જ વ્યક્તિઓ, હર્ષદભાઈ, ડમરુભાઈ, જીગર ને એ બધાએ ભેગા થઈ અને આપનો આ કાર્યક્રમ આટલો સરસ રીતે આયોજિત કર્યો છે. એ બદલ એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ દરમિયાનમાં અમારાથી કાંઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો એ બદલ દિલથી ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ. પ્રણામ નરેન્દ્રભાઈ. પ્રણામ. નરેન્દ્રભાઈ, હવે અમે છે ને અમારો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરવાના છે, એટલે તમે તમારા લેફ્ટ થઈ જાવ. હા, રહેવું હોય તો રહેવું, પણ તમારે ના એટલા માટે કે વિદ્યાર્થીઓને પારણા કરાવવા છે ને, અને તમારા વતી પણ સંઘ વતી પણ પારણા કરાવીશ. તમને પણ અનુમોદનાનો લાભ મળે. ખૂબ આજે પ્રવચનના માધ્યમથી જે વાતો મળી છે એને ખૂબ દિલમાં ધીરે ધીરે ઉતારવાની કોશિશ કરજો. અનાદિકાળના જે અવળા સંસ્કારમાં આપણા મારામાં ને તમારા બંનેમાં પરિવર્તન આવે એ ભાવના. ભગવાનની આજ્ઞાથી કંઈ પણ વિરુદ્ધ બોલાવાનું હોય, નતમસ્તક થઈને શ્રી સંઘના ચરણોમાં વંદન કરતા કરતા મિચ્છામિ દુક્કડમ આપનો કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરો. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જેતિ શાસ્ત્રમ. બોલો પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. બોલો શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. બોલો શ્રી ગુરુ ગૌતમ સ્વામી ભગવાન કી જય. બોલો સુધર્મા સ્વામી ભગવાન કી જય. બોલો શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી ભગવાન કી જય. શ્રી નાકોડા તીર્થના અધિષ્ઠાયક દેવ નાકોડા પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા ચરણોમાં રહેવા વાળા
એવા નાકોડા ભૈરવ દેવ કી જય. જય. બધાને મારા શ્રી સંઘને મારા પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. ચાલો આપણે હવે આપણે આપણો પ્રોગ્રામ